तो शायद वो स्ट्रेस के कारण मैं अपनी मेडिसिन खाना भूल गई थी और मैं मेडिसिन खाया था। बट मेडिसिन खाने के बाद खाया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या हुआ था। बट आई वाज एक्सपीरियंसिंग, मैं कुछ घोट नहीं पा रही हूँ। आई कैन ड्रिंक वाटर, आई कैन टेक इनहेल मीन्स फूड ऑल्सो, आई कैन टेक फूड ऑल्सो। और फिर ऐसा ज़्यादा हुआ कि 2 दिन के अंदर इतना हुआ कि मैं पानी तक पी नहीं पा रही थी। दैट my sister told me, go to top hospital in Delhi and just take a treatment immediately. Then my husband took me to Gangaram hospital and there I get admitted. And there what happened, my voice was completely gone. I could not speak to any word like yes, no, name, anything else. I was conscious, I know everything, I understand everything, but my voice has full gone. I can't swallow anything from my throat. It was not going down basically. So डॉक्टर वाज ऑल्सो कन्फ्यूज कि आपको तो एडीएम था, ये 4 डेज में ऐसा क्या हो गया, आपका वॉइस पूरा चला गया, आप उस टाइम बोल पाती थी, अभी क्या हो गया, आप बोल नहीं पा रहे कुछ भी। दैन डॉक्टर सी एस अग्रवाल है वहाँ पर गंगाराम में, ही इज़ आई थिंक चेयरमैन ऑल्सो इन गंगाराम हॉस्पिटल। दैन ही ट्रीटेड मी फॉर ऑलमोस्ट 20 days. I got admitted in गंगाराम. I was not able to eat anything, drink anything, and they put some pipe in nose और उससे मेरा फूड जाता था अंदर। एंड इट वाज लाइक, एंड मेरे लेग पेन जो लेफ्ट लेग था वो भी मतलब कि मीन्स यू कैन से कि मेरे पाँव से स्लीपर निकल जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा, और राइट लेग वाज ओके। तो आफ्टर दैट आई गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। डॉक्टर एडवाइज मी टेक स्पीच थेरेपी बिकॉज दैट आई कुड नॉट एबल टू speak anything. Even if somebody asked my name, I could not speak my name also. Yes, no, Manju, my name is Manju. I could not speak anything. I know everything, but I could not speak anything, any word. Then I took the speech therapy for Mr. Bharka Gupta. Then she take online classes for me because I could not able to go to a clinic. So मैं online class लिए, and there was stress also there, so much stress or depression there because that time they are teaching me ABCD because I could not able to speak anything else. So means like अब बच्चे बन जाते हो वैसे ही बन गई थी मैं, एंड आई वाज सो स्ट्रेस, सो डिप्रेस, कैसे ट्रॉमा हो जाता है आपको, वैसे हुआ था मुझे। एंड देन फिर मैं थेरेपी लिया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, मुझे मेडिसिन लिया, स्टोरेज दिया था डॉक्टर ने, तो इम्प्रूवमेंट हुआ। इट्स नॉट लाइक कि इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ, मगर बेटर हुआ। एक्चुअली आई कैन स्पीक दैट टाइम आफ्टर अ मंथ, बट आई वॉज यू कैन से माई पास्ट कैरियर, आई वॉज द HR head in a MNC company and give me lecture also in the colleges as a guest lecturer. And my English, my Hindi was so fluent and I was so flexible in speaking Hindi English. And my speed of Hindi English is very fast basically, but I was very flexible. And उससे आप ऐसा हो जाए कि आप बोल नहीं पा रहे हो ठीक से, and some of the words are very slur, which is not clear, so that make it depressed. And that time what happened, after 2 months I conceived also. I took advice of my neuro doctor. He told me, no Manju, you are okay, I think you can go ahead. So there also challenges, again one challenge began with me. I gave a child, I born a child in the year 2019, and after child born, my voice is going down, and doctor told me कि it will happen with you because it's a autoimmune disease. So आपका इश्यू होगा, आपका ऑपरेशन हुआ है तो इश्यू होगा आपका, तो you have to be strong बन जाओ। So थोड़ा सा डिप्रेशन आया था, मीन्स आफ्टर माई बेबी born in 7 days I went to Max Hospital again for MRI. फिर I could not enjoy my motherhood also for my second baby, but still the challenges are continue. Then this doctor was confused, is MS है कि ADM है, not confused because he was confused to rural MS because ADM में क्या होता है कि ADM में एक बार अटैक आता है किसी को, और MS में क्या होता है कि अटैक जो आता है बार बार आता है, इन फ्रिक्वेंट ईयर्स आता है। तो ही सेड कि मुझे विद इन वीक 2 अटैक आ चुके थे। अटैक मीन्स जब मैं देहरादून में थी अटैक आया था मुझे, जब मैं दिल्ली आई विद इन वीक मुझे अटैक आया कि मेरी वॉइस पूछ चली गई। तो माई डॉक्टर कन्फ्यूज़ कि MS है कि ADM है।
but to rule out the MS, he suggests me to go to Bombay Hospital in Mumbai. It's a very big hospital, and my doctor senior was there, and he was expert MS. He was MS expert. तो ने डॉक्टर डायग्नोज मी एंड टोल्ड मी कि नहीं आपको एडीएम ही है. उन्होंने रूल आउट किया कि एमएस नहीं है. कि एमएस में क्या होता है कि आफ्टर ईयर और कुछ महीने बाद कुछ अगेन इशू होता है, कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी में इशू आता है दोबारा से. तो ही टोल्ड माई डॉक्टर कि नहीं इनको एडीएम है, आप एडीएम का इलाज कीजिए. देन अगेन आई वेंट टू केरला ऑल्सो कि मेरी सिस्टर ने पता किया कि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है केरला में, आई थिंक पालघाट में है, कोचिन साइड में, कोचिन में है. तो वहाँ गई तो वहाँ पे ही वॉज एमएस एक्सपर्ट. उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, बात किया, बोला कि जो प्रॉब्लम अभी आपको वॉइस में इशू आया है, फर्स्ट टाइम इशू आया है. नॉर्मली एमएस में इशू लास्ट में आता है, बट आपको पहले ही इशू आ गया है ये. तो ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज एमएस के एडीएम है. टोल्ड कि एडीएम जो होता है उसमें फास्ट एंड कमेंट एडीएम. ही टोल्ड में कि एमएस जो होता है उसमें स्लो हो जाकर आपके बॉडी पार्ट्स में इश्यूज आते हैं. और जो आपको इशू स्टार्टिंग में आया है फर्स्ट अटैक में कि आपकी वॉइस पूरी चली गई थी, वो नॉर्मली एमएस में आता है. एमएस की लास्ट स्टेज में आता है, ये सेकंड थर्ड स्टेज में आता है. तो वो पहले आ गया. तो ही वॉज नॉट श्योर कि एमएस की एडीएम है. तो देर ऑल्सो आई वॉज हेल्पलेस. मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि एमएस की एडीएम है. आई वॉज सो स्ट्रेस, सो कन्फ्यूज. I have a newborn baby, but I could not give time to my baby also. I have one more kid who is just 8 years old, but problem is that means I was so stressed and trauma. फिर लाइफ बीतते गई, चलते गई. मैं बात कर पाती थी, बट नॉट लाइक कि यू से कि मुझे आवाज़ नहीं अच्छा. तो मीन्स मुझे बात करना पसंद था बहुत ही, बट आफ्टर डिजीज़ हुआ मुझे, तो आई वॉज सो शाई टू टॉक टू एनी बडी. आई वॉज बिकम इंट्रोवर्ट फ्रॉम एक्सट्रोवर्ट. मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी से फ़ोन में बात नहीं करूँगी, बाहर नहीं जाऊँगी. आई वॉज सो फीलिंग इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कि मुझे क्या हो गया है. आई वॉज नॉट डूइंग एनी जॉब, दो आई हैव बिजनेस. आई स्टार्टेड इन 2017, बट आई कुड नॉट एबल टू गिव टाइम टू बिजनेस ऑल्सो. And my partner helped me a lot during this phase period, and my partner and my sister always, and my husband, they all three are always told me, no, you just forget everything and start your new life. And then my sister told me, मंजू ये तो डोंट डिपेंड ऑन मेडिसिन, जो हो गया. जस्ट तुम्हें सोच करना क्या है आपको, या तो तुम घर में बैठ के वो चीज़ रोते रहो, या तो फिर अपने आप को अपने बिल्ड करो, अपने आप को, अपनी वीकनेस हटाओ. तो शी बेसिकली एडवाइज मी टू बिकम इंडिपेंडेंट नाउ आफ्टर दिस बिग डिजीज़. सो फिर मैंने धीरे स्टार्ट किया बाहर निकलना, बात करना अपने फ्रेंड लोगों से, फैमिली से बात करना स्टार्ट किया. और मेरे को तो बिज़नेस था, तो मैंने बिज़नेस ब्रांच खोली नोएडा में. माई पार्टनर सपोर्टेड मी मच फ्रॉम मुंबई ऑफिस. एंड फिर वहाँ भी इशू कि मैं बोलूँ कैसे, मैं इंटरव्यू कैसे लूँ, मैं क्लाइंट्स कैसे बात करूँ, क्योंकि आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट कि मुझे बात कैसे करना है. मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था, बिल्कुल लो, कि मैं बोल नहीं पाऊँगी अच्छे से. मेरी वॉइस लर है, किसी को मेरी बात समझ नहीं आएगा, मैं क्या करूँ. आई वॉज सो स्ट्रेस. बस स्लोली माई सिस्टर गाइड मी, नहीं बी स्ट्रॉन्ग, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो. फिर मैंने ट्राई किया स्लोली. मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा. मैंने फिर बोलना स्टार्ट किया, और मैं फिर अपने जो पुराने प्लेटफॉर्म पे आने लगी. तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 5 years यू कैन से टू बी speak like this and to share my experience with you. But still, if you asking me, my disease is not cured. Doctor said कि this is non-curable disease. डिजीज़ क्योर नहीं हो सकती है. ये ऐसा है कि आपके ब्रेन में धब्बे जो हो गए हैं वो हटेंगे नहीं, बट ब्रेन कम, वो आप बोलते हैं माइलेज शीट होती है आपके ब्रेन के अंदर, वो वहाँ से हट गई है. इट्स अ नेचुरल थिंग. तो उसमें आपको इश्यू होगा. तो अभी भी मेरे लेग पे पेन रहता है, मुझे नमनेस नहीं होती है, पेन में टिंगलिंग होती है, स्टिफनेस होता है मेरे लेग में. अभी मेरे कुछ वर्ड्स हैं, टंग में जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से मैं बोल नहीं पाती. स है, ट है, मुझे डिफ़िकल्टी होती है, प है, क है, मुझे बोलने डिफ़िकल्टी होती है. बट स्टिल मैं अपना
सोच के छोड़ दिया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। अभी अगर किसी को समझ नहीं आ रही मेरी बात तो मैं वो दोबारा रिपीट करती हूँ। मैंने अपने आप को उससे बाहर निकाला है ट्रॉमा से कि ठीक है, अगर मुझे इश्यू तो इश्यू है, if somebody is not understanding my word, my sentence, I will repeat twice or thrice time for them, but I have no other option because I have my own issues in brain. So मैं जितना हो सकता है स्लो बोलने की कोशिश करती हूँ, जैसे अभी आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा स्लो नहीं बोलती थी पहले, बट मैंने ट्राई किया थोड़ा स्लो बोलना, तो इट मेक्स इम्प्रूव माई स्पीच। इवन डॉक्टर ऑल्सो एडवाइज मी इफ यू स्पीक स्लो टू इम्प्रूव योर वॉइस। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि कभी कभी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, एंड यू वोंट बिलीव इट कि 2018 में मैंने अपना एमएनसी जॉब छोड़ा और मैंने अपना जो कंपनी ओपन किया था 2017 में, और वो सोच रही कि 2018 में मैं अपना ब्रांच खोलूँगी नोएडा में। और मेरे घर भी नया घर लिया था मैंने अपने घर में शिफ्ट किया था। मेरे बहुत से प्लान्स थे कि मैं नोएडा ब्रांच में आके ऑफिस लूँगी, एम्प्लॉयज़ रखूँगी और अपना नया सेटअप बनाऊँगी। और यू कैन से एवरीथिंग इज वैनिश इन गो इन वेन। मीन्स लाइफ में क्या हो, कब क्या हो जाए, नेवर नो। एंड मैंने बहुत रिसर्च किया एमएस और एडीएम के बारे में, बट मुझे अभी तक पता नहीं कि मुझे क्या हुआ है। एडीएम में कि एमएस है, बट आई बिलीव दैट इट इज़ एडीएम ओनली। और अभी जो भी हो मुझे जीना है अपनी लाइफ को इसके साथ ही, तो मैं अभी ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मेरे लेग पेन रहता है हमेशा, कभी इरिटेशन भी होती है, स्टिफनेस होती है लेग में, वो तो हमेशा रहती है, बट मैं लाइट लेती हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। अभी जैसे जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरा ये चलते रहेगा, या ठीक हो जाएगा, ये चलते रहेगा, तो मुझे अपनी लाइफ जीनी है। तो व्हाई शुड आई क्राई फॉर दिस? जो हो गया 5 साल होने के बाद मैं अभी इम्प्रूव हुआ है मेरा, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। जैसे पुरानी मंजू थी वो मंजू है ही नहीं। मैं स्टिल चैलेंजेस है लाइफ में, मैं जी रही हूँ चैलेंजेस। अभी भी मैंने अपनी कंपनी ओपन की है नोएडा में, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं उसको चलाने में, और मैं कर रही हूँ, मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। क्योंकि अगर आपने अपनी विल पावर छोड़ दी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो अभी मेरा विल पावर है कि फॉर हेल्थ को लेके और अपने कंपनी को लेके विल पावर है कि मैं इसको संभालूँगी और मैं अच्छा करके दिखाऊंगी अपनी कंपनी के लिए। अपनी हेल्थ में ध्यान दे रही हूँ मैं भी। पहले मैं सब्जियाँ नहीं खाती थी, अभी मैं सब सब्जियाँ खाती हूँ, और वैसे नॉर्मली के विटामिन बहुत कम थे मेरे में। अब तो मैं आई श्योर कि मैं हर साल अपने सारे क्वार्टर्स हर सिस्टम में कर रहा हूँ, ताकि मेरा आई गेट टू नो कि मैं कैसे विटामिन कितना लेवल कितना है क्या है। तो मैं सभी को अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। शायद मैंने इग्नोरेंस दिखाया अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई वाज सो बिजी इन फैमिली लाइफ एंड ऑफिस लाइफ। आई नेवर केयर फॉर माई हेल्थ बेसिकली। हमेशा जंक फूड खाना, वेजिटेबल नहीं खाना, मिल्क नहीं पीना, जो एक विटामिन चाहिए होती है आपको हेल्थ के लिए, वो मैं नहीं लिया। और मैं ज़िद्दी भी थी बहुत, नहीं तो नहीं खाना है। तो अभी लगता है कि नहीं, मुझे हर चीज़ खाना चाहिए, और अभी मैं खा रही हूँ, अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो मैं फ्रेंड्स आप सबको बोलना चाहती हूँ कि कभी लाइफ कब क्या दिखा दे आपको, ये नेवर नो, कब क्या हो जाए। तो समय रहते ही अपने आप को हेल्दी बनाइए, और प्लीज़ किसी को एडीएम हुआ है, एमएस हुआ है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी उसको छोड़ दिया है भगवान पे, देखिए आई बिलीव इन गॉड सो मच। सो जो होगा दिखा जाएगा बस। अब जब जितना दिन जिंदा हूँ अब लाइफ को जीनी है बस। थैंक यू।